قانون و انصاف کی مشترکہ پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں آئینی ترامیم کی تمام شقوں پر غور جاری۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر کے تاحیات استثناء سے متعلق معاملہ بھی ابھی زیر غور ہے۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی سینیٹر فاروق نائک نے کہا کہ ہر جماعت کو رائے دینے کا حق ہے، جس کی جو رائے ہوگی اس پر غور کریں گے، اکثریتی رائے کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ کمیٹی کی رپورٹ کل سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ سینٹ کی جانب سے کل 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دیے جانے کا امکان۔ پارلیمانی کمیٹی کا اپوزیشن کی عدم شرکت پر افسوس کا اظہار۔ پاکستان تحریک انصاف، جمعیت علماء اسلام فے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی اور مجلس وحدت المسلمین نے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا کہنا ہے کہ پارلیمانی جماعتوں کو ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہیے۔ کمیٹی نے 85% کام مکمل کر لیا ہے۔ امید ہے آج شام تک کمیٹی اپنا کام مکمل کر لے گی۔ اعظم صاحب کیونکہ کل ٹرانزیشن میں تھے، رات جب وہ آئے ہیں تو انہیں معلوم پڑا کہ یہ امینڈمنٹس آئی ہیں۔ انہوں نے صبح ہی یہ بات کر دی تھی کہ مجھے یہ بالکل نہیں چاہیے۔ آئین میں آفیشیل کیپیسٹی میں ان کے جو فنکشنز ہیں ان پہ ان کو آلریڈی امیونٹی ہے، تو اس بیک گراؤنڈ میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ آئین میں لکھا ہوا ہے میرے لیے یا وزیر اعظم کے لیے، میں نے تو نہیں رہنا ہمیشہ، وہ بہت مناسب ہے۔ فنکشنز مختلف ہونے کی وجہ سے ان نیچر وہ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ یہ امیونٹی وزیر اعظم کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر سینیٹر انوش رحمان نے وزیر اعظم کو دوران مدت فوجداری مقدمات سے استثناء کی ترمیم واپس لے لی۔ چیئرمین کمیٹی فاروق نائک نے ترمیم واپس لینے کو سراہا۔ کابینہ سے منظور ترمیمی مسودے میں استثناء کی شق شامل نہ ہونے کے باعث اسے نکالنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز سینیٹرز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ منتخب وزیر اعظم یقیناً قانون اور عوام کی عدالت میں جواب دہ ہے۔ گزشتہ روز پیش 27ویں ترمیم میں آئین کے آرٹیکل 248 میں صدر کے ساتھ وزیر اعظم کو بھی شامل کرنے کی تجویز پیش کی گئی تھی۔ آج رات سے 8:30 بجے ہم نے بس سلوگن شروع کرنے ہیں۔ آج رات کا سلوگن وہ ہے جو ابھی جالب کا شعر ہے، ایسے دستور کو ایسے منشور ہم نہیں مانتے۔ تاریخ شروع ہو چکی۔ آج رات اتنی چیخ و پکار ہونی چاہیے تاکہ تمام پاکستان کے اقتدار کے جو ایوان لرز اٹھیں۔ چیئرمین تحریک تحفظ آئین محمود اچکزئی کا تحریک چلانے اور پارلیمنٹ نہ چلنے دینے کا اعلان۔ کہا آج سے تحریک شروع ہے، رات 8:30 بجے سے نعرے شروع کر دیں گے اور آج کا نعرہ ہوگا ایسے دستور کو ہم نہیں مانتے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں عوام پاکستان پارٹی کے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا 27ویں ترمیم شخصیات کے فائدے اور نقصانات کو سامنے رکھ کر کی گئی ہے۔ آئین کا شخصیات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اشرافیہ اپنے مفادات کے لیے آئین میں ترمیم کر رہی ہے۔ راجہ ناصر عباس نے کہا کہ پارلیمان اور عدلیہ کو تباہ کر دیا ہے، یہ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اس ترمیم کا راستہ روکنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ پارلیمنٹ سے آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے 2/3 ارکان کی حمایت درکار۔ حکومت کو سینٹ سے 64 اور قومی اسمبلی سے 224 ارکان کے ووٹ درکار ہوں گے۔ سینٹ میں پیپلز پارٹی کے 26، نون لیگ کے 20، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4، MQM کے 3، نیشنل پارٹی اور مسلم لیگ قاف کا 1 سینیٹر اور 3 آزاد سینیٹرز حکومتی بینچز کا حصہ ہیں۔ سینیٹر انوار اللہ کاکڑ، اسد قاسم اور فیصل واوڈہ آئینی ترمیم کی حمایت میں ووٹ دیں گے۔ اس طرح حکومت کے کل ووٹ 61 ہو جائیں گے۔ 26ویں ترمیم کو ووٹ دینے والی آزاد سینیٹر نسیمہ احسان اور ANP کے 3 سینیٹرز نے بھی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا، تو حکومت کو 27ویں ترمیم کی منظوری کے لیے 65 ارکان کی حمایت حاصل ہو جائے گی۔ سینٹ میں اپوزیشن بینچز پر PTI کے 14، JUIFA کے 7، PTI کے حمایت یافتہ 6 آزاد، MWM اور سنی اتحاد کونسل کا 1 سینیٹر ہے۔ ایک نو منتخب سینیٹر جلد حلف اٹھا لیں گے۔ PTI کے مراد سعید نے ابھی حلف نہیں اٹھایا۔ اس طرح ممکنہ طور پر آئینی ترمیم کی مخالفت میں صرف 30 ووٹ ہوں گے۔ فیلڈ مارشل کا عہدہ تاحیات ہوگا۔ آرمی چیف آف ڈیفنس فورسز ہوں گے۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا۔ سینٹ میں پیش 27ویں ترمیم کے مطابق فیلڈ مارشل آف ایئر فورس اور ایڈمرل آف فلیٹ کا رینک حاصل کرنے والا تاحیات یونیفارم میں رہے گا۔
रैंक और मुराआत ताहयात रहेंगी। सदर की तरह अदालती इस्तिस्ना हासिल होगा। ओहदे पार्लियामेंट के मुआखज़े से ख़त्म किया जा सकेगा। कोई फर्द वाहिद फील्ड मार्शल का टाइटल वापस नहीं ले सकेगा। मुजव्वज़ा तरमीम के मुसवदे के मुताबिक मुल्क में वफाकी आईनी अदालत कायम की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट आईनी अदालत के फैसले की पाबंद होगी। हाई कोर्ट के जजों के तबादले का इख्तियार जुडिशल कमीशन को दिया जाएगा। ट्रांसफर मानने से इनकारी जज रिटायर्ड तस्वर होगा। अज खुद नोटिस से मुतालिक आर्टिकल 184 भी हज़फ कर दिया गया। सदर के खिलाफ उम्र भर और गवर्नर के खिलाफ उसकी मुद्दत के दौरान कोई फौजदारी कार्रवाई नहीं हो सकेगी। NCCIA के सीनियर अफसरान के खिलाफ इस्लामाबाद के गैर कानूनी कॉल सेंटर से करोड़ों रुपए भत्ता लेने का मुकदमा दर्ज। एडिशनल डायरेक्टर्स NCCIA रावलपिंडी समेत 13 अफसरान, कॉल सेंटर से डील करने वाला शख्स और गैर मुल्की शहरी भी नामजद। मरकजी मुलजिम डायरेक्टर NCCIA सिंध भी रह चुका है। FIR के मुताबिक मुलजमान इस्लामाबाद सेक्टर 11F में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना करोड़ों रुपए भत्ता लेते रहे। एक मुलजिम अफसरान का फ्रंट मैन है जिसने खातून से रकूम वसूल की। खातून ने 13 गैर मुल्कियों और अपनी शौहर की रिहाई के लिए करोड़ों रुपए अदा किए। कौमी एयरलाइन के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज का छठा रोज मजीद 10 परवासें मनसूख कर दी गईं। मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मुल्क भर की 54 परवासें ताखीर का शिकार। मंजूरी लिए बगैर महंगे 40 लाख AMI मीटर्स लगाने पर नेपरा ने वजारत तवानाई और डिस्को सरबराहान से जवाब तलब कर लिया। ज़राए नेपरा के मुताबिक बिजली तकसीमकार कंपनियों ने रेगुलेटर की लाजमी मंजूरी के अमल को नजरअंदाज किया। डिस्कोज ने खुद ही नॉर्मल मीटर की कीमत 5,000, AMI मीटर की कीमत 20,000 रुपए मुकर्रर कर दी। वजारत तवानाई ने बड़े पैमाने पर AMI मीटर हांगकांग सिक्सेस पाकिस्तान ने जीत लिया। फैसला कुन मार्के में कुवैत को 43 रन से मात दी। फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 3 विकेट पर 135 रन बनाए। अब्बास आफरीदी ने 52 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में कुवैत की टीम आखिरी ओवर में 92 रन पर ऑल आउट हो गई। मौज सदाकत ने 3 खिलाड़ी आउट किए। पाकिस्तानी टीम 36 मरतबा ये टाइटल जीतने में कामयाब रही। हांगकांग सिक्सेस का प्लेट फाइनल मेजबान हांगकांग ने जीता। बाउल फाइनल में श्रीलंका ने फतह हासिल की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हांगकांग सिक्सेस का टाइटल जीतने पर टीम और पूरी कौम को मुबारकबाद कहा कि टीम ने जज्बे और टीम वर्क का बेहतरीन मुजाहिरा किया जो पाकिस्तान क्रिकेट की रूह का बेहतरीन इजहार है। तजर्बेकार ड्राइवर साहिबजादा सुल्तान और नादिर मकसीद थल जीप रैली की प्रीपेयर्ड कैटेगरी जीतने में कामयाब न हो सके। फैसल शादिखेल ने तमाम ड्राइवर्स को पीछे छोड़ दिया। मोहम्मद सईद का दूसरा नंबर रहा। साहिबजादा सुल्तान की तीसरी पोजीशन आई। नादिर मकसी चौथे नंबर पर रहे। श्रीलंका क्रिकेट टीम कैप्टन चरित असलंका की क़यादत में इस्लामाबाद पहुंच गई। 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज 11 से 15 नवंबर तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। वनडे सीरीज के बाद पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका T20 ट्रायंगुलर सीरीज भी मद्दे मुकाबिल होंगे। ट्रायंगुलर सीरीज रावलपिंडी और लाहौर में 17 से 29 नवंबर तक खेली जाएगी। श्रीलंकन टीम की आमद पर रावलपिंडी पुलिस के फुल प्रूफ सिक्योरिटी और ट्रैफिक इंतजामात, 5500 से ज्यादा अफसरान सिक्योरिटी पर मामूर। CPO रावलपिंडी का कहना है कि स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं। CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग जारी है। श्रीलंका के खिलाफ वनडे और 3 मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। हसन नवाज को दोनों फॉर्मेट से रिलीज कर दिया गया। उनकी जगह वनडे स्क्वाड में किसी को शामिल नहीं किया गया। फखर जमान T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाए गए हैं। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज 11 से 15 नवंबर रावलपिंडी में खेली जाएगी। ट्राई नेशन सीरीज 17 से 29 नवंबर तक होगी। पाकिस्तान ने तीसरे और फैसला कुन वनडे में जनूबी अफ्रीका को 7 विकेटों से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से जीत ली। मेहमान टीम 143 रन बनाकर आउट हो गई। क्विंटन डीकॉक 53 रन बनाकर नुमाए रहे। पाकिस्तान ने हदफ 26वें ओवर में हासिल कर लिया। साई मयूब ने 77 रन की इनिंग्स खेली। मोहम्मद रिजवान 32 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बाबर आजम 27 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 15,000 रन मुकम्मल कर लिए। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तीसरे एक रोज़ा मैच में पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार बॉलिंग, ओपनर्स डीकॉक और यूहान की बेहतर रन की शिराकत के बाद मजीद किसी हरीफ बैटर को टिकने नहीं दिया। 71 रन के इजाफे से बकिया 9 विकेटें हासिल कर लीं। अबरार अहमद के 27 रन के बस 4 शिकार। शाहीन शाफरीदी, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज ने 2-2 विकेटें हासिल की। फिर तहारुद्दीन ममदूद के घर खाकसारों की जहाँ पर कायद आज़म ने इयादत की, वो यहाँ इकबाल पर भी पहुँचे। ये फरमाया कि अगर आज इकबाल जिंदा होते
हमें देखकर बहुत खुश होते हैं कि हम इन के ख्वाबों की ताबीर पूरी कर रहे हैं। शायर मशरक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश। लाहौर में मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। मेहमान खुसूसी रियर एडमिरल सुहेल अहमद आज़मी ने मज़ार पर फूल रखे फातिहा पढ़ी। एयर वाइस मार्शल राना आसिफ की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूल रखे। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। GOC मेजर जनरल आतिफ बशीर की भी मज़ार इकबाल पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई। आई पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने भी मज़ार इकबाल पर फूल रखे। कहा इकबाल की शायरी, अफकार, इंसाफ पसंदी का दर्स पंजाब पुलिस के लिए मशअल राह है। नामवर गुलकारों ने अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़कर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। शायर मशरिक़ मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पर पैगाम में सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिराज अक़ीदत। सदर ने कहा अल्लामा इकबाल का पैगाम आज भी रहनुमाई का सरचश्मा है। उन्होंने उम्मत मुस्लिमा की शनाख्त, रूहानियत और आज़ादी पर जोर दिया। वज़ीर आज़म ने कहा अल्लामा इकबाल ने गुलामी के अंधेरों में रोशनी की शम्मा जलाई। आज भी कौमी और आलमी हालात में फ़िक्र इकबाल रहनुमाई फराहम करती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि पाकिस्तान इकबाल के ख्वाब की ताबीर है और उसकी हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए इकबाल का पैगाम अपनाना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बोली अल्लामा इकबाल उफ़कार पर अमल करके ही पाकिस्तान एक एतदाल पसंद और फलाही रियासत बनेगा। इकबाल ने कौम की समत मुतय्यन की और कायदे आज़म ने काफिला मंजिल पर पहुँचाया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा अल्लामा इकबाल ने बरसगीर के मुसलमानों में खुदी, इत्तेहाद और आज़ादी का जज्बा पैदा किया। उनका फलसफा खुद ही नौजवानों के लिए मशअल राह है। गवर्नर के फैसल करीम कुंजी ने कहा अल्लामा इकबाल की सोच और फिक्र का महवर सिर्फ इस्लाम था। जिंदगी और हालात को समझने के लिए फिक्र इकबाल से रोशनास होना जरूरी है। ईरान के सफीर रजा अमीरी मुकद्दम का पाकिस्तान और ईरान में यौम इकबाल पर अजीम शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को खिराज अक़ीदत। कहा इकबाल इस्लाम की रूह और फ़ारसी अदब की खुशबू से पहचाने जाते हैं। उनकी फ़ारसी ज़ुबान पर महारत ने ईरान और पाकिस्तान को फ़िक्री तौर पर जोड़ा। अल्लामा इकबाल का ईमान और इत्तेहाद का पैगाम आज भी दुनिया भर में गूंजता है। इकबाल कौमों को इज़्ज़त, खुददारियत, अखलाक़ी क़ुव्वत की राह दिखाते हैं। उन्हें फ़ख्र है कि ईरान ने आज का दिन यौम इकबाल करार दिया। लाहौर समेत पंजाब के कई अज़ला में आज भी फ़िज़ाई मायार इंतहाई मुसरसर है। सबसे ज़्यादा फैसलाबाद की फ़ज़ा आलूदा। आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक कुछ दिन पहले फैसलाबाद में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 487 रिकॉर्ड की गई। मुल्तान में 482, लाहौर में 316 रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक लाहौर में सुबह 9 बजे पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 363, मुल्तान में 449, फैसलाबाद में 298 रिकॉर्ड की गई। आज से आइंदा 5 रोज़ के दौरान स्वात, नारान, हुंजा और स्कर्दू और बलूचिस्तान के इलाके ज़ियारत में सर्द और खुश्क मौसम का राज रहेगा। आलमी शोहरत याफ्ता साइंसदान और इंसानी DNA का स्ट्रक्चर दरियाफ्त करने वाले जेम्स वॉटसन इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 97 साल थी। जेम्स वॉटसन ने साथी साइंसदान फ्रांसिस क्रेग के साथ मिलकर DNA स्ट्रक्चर का पता लगाया था और बताया था कि ये डबल हेलिक्स की शक्ल का होता है। इस दरियाफ्त पर जेम्स वॉटसन को फ्रांसिस कर्क और मॉरिस वल्कन्स के साथ 1962 में तिब का नोबेल इनाम दिया गया था। लाहौर कलंदर्स PM यूथ प्रोग्राम के तहत क्रिकेट डेवलपमेंट प्लान में ट्रायल्स के बाद सूबाई लेवल्स पर टूर्नामेंट्स का मरहला जारी। कराची में सिंध के मुंतखब प्लेयर्स के दरमियान इवेंट मुकम्मल हो गया। टूर्नामेंट के बेहतरीन प्लेयर्स को नेशनल लीग के लिए मुंतखब किया जाएगा। और 2025 की हसीना आलम का ताज किसके सर सजेगा? फैसला 21 नवंबर को होगा। 74वें मिस यूनिवर्स फाइनल का मेला थाईलैंड के शहर पाकरेट में सजेगा। पाकिस्तान के रोमा रियाज दुनिया भर से 122 हसीनाओं के साथ मैदान में। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाली 24 साल रोमा रियाज बिजनेस ग्रेजुएट हैं। गुज़िश्ता बरस कराची की एरिका रॉबिन ने मुकाबले में हिस्सा लिया था। पहली बार फ़लस्तीन से ताल्लुक़ रखने वाली नाज़ीन अयूब भी मुकाबले का हिस्सा हैं।